Today we are going to talk about what? To talk about the concept of gluconeogenesis. That what's mean by gluconeogenesis. Today we are going to talk about the gluconeogenesis. This is our topic. Okay. Gluconeogenesis. This pathway is gluconeogenesis pathway is very important for our body. Before going to depth in this pathway, first to understand what does gluconeogenesis mean. The gluconeogenesis mean the production of carbohydrate, the production of glucose from non-carbohydrate source like amino acid, like fatty acid. When there is deficiency of what? When there is deficiency of glucose, when you not having meal for long time or you are in fasting condition and fasting position and your body need glucose for proper function, so another pathway will be started which is known as gluconeogenesis. By the gluconeogenesis pathway, the production of glucose will be possible either from amino acid or either by protein metabolism, either by fat metabolism, lipid metabolism process. The second line of glucose source is protein metabolism, and the third line of glucose source is lipid metabolism. We also says that this pathway is basically functional between meal. You already know that when you are not having meal or you are in fasting condition and your body needs some glucose glucose and make these glucose from non-carbohydrate source. Okay, it takes place in two parts. The gluconeogenesis pathway is take place into two parts. One is mitochondria and the second one place is cytoplasm. The second one space is cytoplasm. It is basically, we also said that the gluconeogenesis pathway is the reversible source of glycolysis. We already says that in the glycolysis process there is production of by the glycolysis process the glucose is converted into the pyruvate. But in the gluconeogenesis, what will be happen? This pyruvate molecule will be converted into glucose. So we can say that the gluconeogenesis is the reversible step of glycolysis. सही है, ये ग्लाइकोलाइसिस के अपोजिट हम रिवर्सिबल स्टेप कह सकते हैं, इज द रिवर्सिबल स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. बट ये क्या है? इन ग्लाइकोलाइसिस वी हैव 3 इरिवर्सिबल स्टेप. यू ऑलरेडी नो डेट. इफ वी नो, अगर हम यहाँ पर जाते हैं, अगर ग्लाइकोलाइसिस की तरफ जाते हैं, we have 3 irreversible steps. One step is from glucose there was formation of glucose and convert into the glucose 6-phosphate by hexokinase, either glucokinase enzyme. But this glucose 6-phosphate is irreversible into glucose in the glycolysis process. This is first step. And the second one step is from fructose 6-phosphate is converted into the fructose 1,6-bisphosphate by enzyme which is known as fructose phosphofructokinase 1. But this fructose 1,6-bisphosphate is not possible to reverse into or to again form is not possible to form into fructose 6-phosphate again. This is also irreversible. And the third one step in glycolysis, the irreversible step is this. The third one step is this, that from the phosphonyl pyruvate is converted into the pyruvate. But this pyruvate is not possible to convert into PEP, mean phosphophenyl pyruvate. सही है. हम ग्लाइकोलाइसिस में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर 3 स्टेप्स थे. 3 स्टेप थे जो इरिवर्सिबल स्टेप थे. फर्स्ट वन स्टेप क्या था हमारे पास? फर्स्ट वन स्टेप ये था कि ग्लूकोज 6-फास्फेट में पॉसिबिलिटी थी इसमें कन्वर्ट होना, लेकिन ग्लूकोज 6-फास्फेट का इसमें वापस ग्लूकोज में आना पॉसिबल नहीं था. दिस इज वन इरिवर्सिबल स्टेप. द सेकंड वन स्टेप इज ग्लूकोज 6-फास्फेट का बाय फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के जरिए फ्रक्टोज 1,6-बिसफास्फेट में पॉसिबिलिटी था इसमें कन्वर्ट होना, लेकिन फ्रक्टोज 1,6-बिस
फास्फेट का वापस फ्रक्टोज 6 फास्फेट में वापस होना नामुमकिन था इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। तीसरा स्टेप हमारे पास हमने ये पढ़ा था कि फास्फोनाइल पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट होता था किस में, यानी पायरुवेट काइनेज के ज़रिए कन्वर्ट होता था पायरुवेट में, लेकिन पायरुवेट का वापस फास्फोनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट होना नामुमकिन था इन द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। लेकिन जब हम ग्लूकोन्यूजेनेसिस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लूकोन्यूजेनेसिस, दिस पाथवे, the basic concept of this pathway to overcome over these step, one is हमने क्या पढ़ा था, इस पे ओवरकम करना है, टू कंट्रोल ओवर दिस स्टेप। कौन सा स्टेप है? फर्स्ट वन स्टेप इज दिस, हमने क्या पढ़ा था? द फर्स्ट वन स्टेप इज दिस, ऑन दिस पाथ टू ओवरकम ऑन दिस स्टेप, टू ओवरकम ऑन दिस स्टेप, एंड द थर्ड वन इज टू ओवरकम ऑन दिस स्टेप। इन तीनों स्टेपों पे कंट्रोल करना है। ग्लूकोन्यूजेनेसिस का मकसद ही यही है। आज जो हमारा कंसेप्ट है इस पे क्या करना है, इस पे कंट्रोल करना है, सही है, टू ओवरकम ऑन दीज स्टेप्स। ग्लूकोन्यूजेनेसिस बेसिकली मीन टू रिवर्स दिस पाथवे। हमारे पास टू रिवर्स दीज पाथवे, हमारे पास दीज पाथवे कौन से 3 पाथवे थे? ग्लूकोज का फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होना, इसको रिवर्स करना है। दूसरा क्या था? फ्रक्टोज 6 फास्फेट का कन्वर्ट होना किस में? ग्लूकोज 1,6 बिस फास्फेट, इसको रिवर्स करना है। तीसरा क्या? फास्फोनाइल पायरुवेट का कन्वर्ट होना पायरुवेट में, लेकिन ये इरिवर्सिबल स्टेप थे, इसको क्या करना है? टू रिवर्स ऑन दिस, ये इरिवर्सिबल स्टेप को क्या करना है? ग्लूकोन्यूजेनेसिस प्रोसेस से इसको रिवर्सिबल मुमकिन बनाना है। इसका मकसद ही यही है। टू मेक ग्लूकोज फ्रॉम पायरुवेट वी नीड ओवरकम दिस इरिवर्सिबल स्टेप। जब तक हम इस 3 इरिवर्सिबल स्टेप पे ओवरकम नहीं करेंगे तो क्या होगा? द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द पायरुवेट एंड टू द प्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम पायरुवेट जो है वो क्या होगा? नामुमकिन होगा। या प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द एमाइनो एसिड, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द फैटी एसिड और लिपिड विल नॉट बी पॉसिबल। टू ओवरकम or the possible, to make possible the production of glucose from the non-carbohydrate source, we have to control over these steps। सही है, जो हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस में जो 3 स्टेप्स है उस पर क्या करना है? इस पर कंट्रोल करना है, उस पर कंट्रोल करना है हमारा। तीसरा क्या? सो वी कैन से डेट ग्लूकोन्यूजेनेसिस ए रिवर्सिबल पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इट मेक ग्लूकोज फ्रॉम पायरुवेट बट इट हैज टू ओवरकम 3 इरिवर्सिबल स्टेप जो हमने पढ़े थे। एज वी ऑलरेडी मेंशन, सही है, दिस पाथवे occur, सही है, occur in between meal when we are in fasting, when we do not have glucose, we have to make glucose for body to keep working। सही है, हमें अपनी बॉडी की वर्किंग को बरकरार रखना है। तो बरकरार रखने के लिए ग्लूकोज की नीड को हमें पूरा करना है किसके? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। इस सोर्स को, इस पाथवे को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं। इस ग्लूकोन्यूजेनेसिस में क्या है? दिस ग्लूकोज इज मेड फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। हमारे पास क्या है? मेन सोर्स वी हैव इन दिस पाथवे। ग्लूकोन्यूजेनेसिस में हमारे पास मेन सोर्सेज क्या है? वन इज एलेनिन विच इज एमाइनो एसिड, वन इज ग्लिसरॉल 3 फास्फेट। ग्लिसरॉल 3 फास्फेट जो हमारे पास फैटी एसिड से वो होता सोर्स है, फैटी एसिड सोर्स है। तीसरा है लैक्टेट जो हमारे पास, जहां व्हेन देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन सम सेल तो लैक्टेट प्रोडक्शन होता। तो लैक्टेट जो है वो किस में कन्वर्ट होना था? प्रोडक्शन ऑफ पायरुवेट होता था। और यही प्रोडक्शन ऑफ पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता था? प्रोडक्शन ऑफ दिस पायरुवेट मेक पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी। सही है, ये 3 सोर्सेज हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पायरुवेट। वन इज एलेनिन, सेकंड वन इज लैक्टेट एंड द थर्ड वन इज ग्लिसरॉल 3 फास्फेट। सही है, हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फास्फेट जो है हमारे पास फैटी एसिड से आ जाता है। लैक्टेट जो है हमारे पास नॉन एरोबिक सेल, जहाँ पर नॉन एरोबिक मेटाबॉलिज्म होती है वहाँ पर आ जाता है। वी हैव, हमारे पास जो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, वी हैव 20 अमाइनो एसिड्स। हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं। इन 20 अमाइनो एसिड में जो है 2 आर प्योरली केटोजेनिक हैं, जो ग्लूकोन्यूजेनेसिस में काम नहीं आते हैं। सही है, वो प्योरली केटोजेनिक जो है हमारे पास थ्रू 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है विच इज नोन एज ल्यूसीन एंड लाइसिन।
सही है। ल्यूसीन और लाइसिन जो है वो प्योरली केटोजेनिक है। तो ल्यूसीन और लाइसिन जो है वी कांट यूज और यूटिलाइज ल्यूसीन और लाइसिन फॉर द ग्लूकोन्यूजेनिक पाथवे। ग्लूकोन्यूजेनिक पाथवे के लिए लाइसिन और ल्यूसीन को हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर प्योरली केटोजेनिक। बट रेस्ट ऑफ 18 अमाइनो एसिड जो है आर क्या है, आर ग्लूकोन्यूजेनिक। ग्लूकोन्यूजेनिक मीन जो 18 अमाइनो एसिड हमारे पास हैं वो क्या है, दे आर ये क्या है, दे आर एबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। सही है। ये अमाइनो एसिड जो है ये हमारे पास क्या है, दे आर एबल टू स्टेबलाइज दिस पाथवे। दे आर एबल द रेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड 18 अमाइनो एसिड जो है हमारे पास एक्सेप्ट क्या है, ल्यूसीन और लाइसिन जो है, दे आर एबल टू स्टेबलाइज द ग्लूकोन्यूजेनिक पाथवे को क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्लूकोन्यूजेनेसिस के लिए हमारे पास 3 मेन सबस्ट्रेट्स हैं। 3 मेन सबस्ट्रेट्स क्या हैं, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट, एलेलीन है और तीसरा क्या है, लैक्टेट है। लैक्टेट जो है हमारे पास एनएरोबिक सेल पाथवे है। व्हेन वी डू नॉट हैव एनफ ऑक्सीजन टू यूटिलाइज द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, तो हमारे पास क्या है, तो फिर हमारे पास ये पाथवे लैक्टेट पाथवे स्टार्ट हो जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पायरुवेट। और यह पायरुवेट क्या करेगा, मेक पॉसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी। सही है। हमारे पास तीसरा क्या है, पायरुवेट वाज लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जैसे हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होता था, प्रोडक्शन ऑफ पायरुवेट होती थी, प्रोडक्शन ऑफ पायरुवेट मुमकिन था। लेकिन हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है, पायरुवेट है। लेकिन ग्लूकोन्यूजेनेसिस में लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। तो ये हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि ये दिस इज द रिवर्सिबल पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सिबल पाथवे हम ये भी कह सकते हैं। सही है। पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू, हमारे पास ये था कि पायरुवेट किसमें, ऑक्सिलो एसीटेट, OAA, ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट होता था। लेकिन इस पायरुवेट को कौन इसको एक्टिवेट करते हैं, हाँ, इस पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू ऑक्सिलो एसीटेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम। लेकिन पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम को ABC 3 चीज़ें इसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्टिवेशन प्रोसेस। एक हमारे पास क्या है, ए मीन ATP, कार्बन, B फॉर बायोटीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 चीज़ें जो हैं दिस मेक पॉसिबल टू एक्टिवेट व्हाट, टू एक्टिवेट द पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम। तो पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम किसको एक्टिवेट करता है, पायरुवेट को। और विद द हेल्प, और ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सिलो एसीटेट में। सही है। ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम विच इज नोन एज कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम। सही है। हमारे पास 3 सबस्ट्रेट इसको नीड है जो हमने पढ़ा, ABC, ATP, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बायोटीन। सही है। हमारे पास पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज एक्टिवेटेड बाय, हमारे पास पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम इज एक्टिवेटेड बाय एसिटाइल कोएंजाइम एंड इट लीड टू इनहिबिट द PDH, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सही है। जैसे हमने पढ़ा था कि जब जब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जब पायरुवेट कन्वर्ट होता था, और यही पायरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता था, व्हेन देयर इज हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम फिर क्रेब्स साइकिल में कन्वर्ट हो जाता था, क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता था। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिस्टम अलग है। यहाँ पर वी हैव द डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की डिफिशियंसी है। सो द पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम विल बी इनहिबिटेड बाय द पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम। द पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, एसिटाइल को एंजाइम को नहीं, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। और इस इनहिबिशन की वजह से जब एसिटाइल को एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, जब ये क्या करेगा, पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, और दिस विल लीड टू कन्वर्ट द पायरुवेट इनटू द ऑक्सिलो एसीटेट। जब ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता था, एसिटाइल को एंजाइम इज ऑब्लिगेट एक्टिवेशन ऑफ, एसिटाइल कोएंजाइम क्या है, इज द ऑब्लिगेट एक्टिवेशन ऑफ द पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम। इफ एसिटाइल कोएंजाइम नॉट प्रेजेंट, अगर हमारे पास यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा,
तो दिस पाथवे विल नॉट वर्क वेल। सही है, ये पाथवे काम नहीं करेगा। सही है, व्हेन वी नॉट ईटिंग समथिंग, और फैटी एसिड हमारे पास क्या हो जाता है, फैटी एसिड यानी फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाते हैं। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के स्टार्ट होने की वजह से एसिटाइल कोएंजाइम प्रोडक्शन हो जाते हैं। इस एसिटाइल कोएंजाइम प्रोडक्शन की वजह से वो क्या करेगा, वो पायरुवेट को एक्टिवेट करेगा बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम विच इज नोन एज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, और ये ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट। और ये जो है ख़ास किस्म का, जिसको हम क्या कहते हैं, मेलेट शटल कहते हैं। इसमें मेलेट शटल के ज़रिए, मेलेट एस्पेरेट शटल के ज़रिए ऑक्सिलो एसीटेट जो है ये एंटर होगा साइटोप्लाज्म में। जब ये ऑक्सिलो एसीटेट जब साइटोप्लाज्म में एंटर होगा, ये पिप में कन्वर्ट होगा, यानी पायरुवेट, ये क्या है, पिप कार्बोक्सिलेज एंजाइम के ज़रिए ऑक्सिलो एसीटेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के ज़रिए ये कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सिलो एसीटेट को कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, इसको पिप में कन्वर्ट करेगा। पिप मीन पेनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही पेनाइल पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। और फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट जो हमारे पास इरिवर्सिबल था, हमने पढ़ा था कि कंसेप्ट ऑफ ग्लूकोन्यूजिनेसिस क्या है, टू ओवरकम ऑन दिस पाथवे, टू ओवरकम ऑन दीज 3 स्टेप। हमारे पास 1 स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, और तीसरा स्टेप ये है। हमारा ये 3 स्टेप जो है, इसको क्या करना है, इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल बनाना है। तो ऑक्सिलो एसीटेट कन्वर्ट हुआ पिप में, कौन सी एंजाइम के जरिए, पेनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के जरिए ऑक्सिलो एसीटेट कन्वर्ट हुआ पिप में, और ये ग्लिसरल्डिहाइड में, और ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फास्फेट के जरिए 6 फास्फेट में बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम विच इज नोन एज फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। और यही फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फास्फेट, और यही ग्लूकोज 6 फास्फेट जो इरिवर्सिबल था ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, ये कन्वर्ट हुआ किस में, ग्लूकोज में, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम विच इज नोन एज ग्लूकोज 6 फास्फेट। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने का मकसद ये है कि इससे क्या करना है, कार्बन नंबर 6 से किसको हटाना है, फास्फेट को हटाना है। इसी तरह 1,6 बिस फास्फेट का कन्वर्ट होना फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, इसका मतलब कार्बन नंबर, फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 से फास्फेट को हटाना है। तो 1 जो जब हट गया, कौन से एंजाइम के जरिए, बिस फास्फेटेज एंजाइम के जरिए। फास्फेटेज एंजाइम के जरिए जब ये एक फास्फेट को हटाएंगे तो किस में कन्वर्ट करेगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करेगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह, ये हमारे पास ग्लूकोन्यूजिनेसिस पाथवे है, इसको कन्वर्ट कर दिया हमारे पास। नाउ दिस पायरुवेट कम फ्रॉम द, हमारे पास ये है कि एलेलिन है, लेक्टिन है, और ग्लिसरॉल के ज़रिए ये पाथवे जो है यहाँ तक आ गया। फिर हमने ये पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, जब हमारे पास जो हमारे पास ये ख़ास किस्म का एंजाइम है, जो ये एंजाइम है पेनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, इसको एक्टिवेट करते हैं। ये कब एक्टिवेट होते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, तो हमारे पास ख़ास किस्म का एंजाइम जो है वो रिलीज़ होते हैं। जैसे कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, ग्लूकागोन और कोर्टिसोल हार्मोन। तो ये कोर्टिसोल हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन जो है इस ख़ास जीन को एक्टिवेट करता है। इस ख़ास जीन के एक्टिवेशन की वजह से ये पेनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो क्या हो जाता है, वो रिलीज़ हो जाता है, और इसकी रिलीजिंग होने की वजह से ऑक्सिलो एसीटेट को पॉसिबल बनाता है किस में कन्वर्ट करने के लिए, फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में हमारे पास ये 3 स्टेप्स क्या थे, इरिवर्सिबल थे। तो ग्लूकोन्यूजिनेसिस के स्टेप की वजह से क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। तो हमारे पास ग्लूकोन्यूजिनेसिस का मकसद क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, और दूसरा क्या है, द कंसेप्ट ऑफ ग्लूकोन्यूजिनेसिस मीन टू ओवरकम ऑन दीज 3 स्टेप्स, जो ग्लाइकोलाइसिस में नामुमकिन था, इरिवर्सिबल स्टेप था। यानी 6 फास्फेट का ग्लूकोज में होना, वापस होना क्या था, नामुमकिन था, लेकिन ड्यू टू दिस प्रोसेस क्या हो गया, ये मुमकिन होगा। तो हमारे पास ग्लूकोन्यूजिनेसिस में ये 3 एंजाइम जो है आपको याद करना लाजिम है, ग्लूकोज 6 फास्फेट और
फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेटेज और तीसरा है फिनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम जो है आप लोगों को याद करना है। और दूसरी बात ये कि पायरुवेट को एक्टिवेट कौन करता है? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम पायरुवेट को कन्वर्ट करता है। इट हैज 3 सबस्ट्रेट ए बी सी हमने पढ़ा था। कौन? ए फॉर व्हाट? हमारे पास ए क्या है? ए फॉर एटीपी, सी बी फॉर बायोटीन, सी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये मुमकिन हो गया, सही है। हमारे पास क्या है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेटेज जो है दिस इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम है ग्लूकोन्यूजेनेसिस। दिस इज हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट जो है ये एक्टिवेट हो जाता है किसकी वजह से? एटीपी की वजह से। लेकिन ये एटीपी कहाँ आया था? ड्यू टू द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ। इसकी प्रोडक्शन ऑफ एटीपी की वजह से ये क्या हुआ? इसको एक्टिवेट करता है, फ्रक्टोज 1,6 फास्फेटेज को एक्टिवेट करते हैं। दूसरी बात ये कि इट इज़ इनहिबिटेड बाय एएमपी। जब हमारे पास एएमपी एमाइनो मोनोफास्फेट का प्रोडक्शन होता है बॉडी में तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेटेज क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है। जब ये इनहिबिट होगा द फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट विल नॉट बी पॉसिबल टू कन्वर्ट इनटू दिस, सही है। तो इसके इनहिबिशन और एक्टिवेशन प्रोसेस जो है हमें याद करना होता है, सही है। हमारे पास जो ग्लूकोन्यूजेनेसिस पाथवे ये कहाँ पर ओकर होता है? दिस इज ओकर प्लेस इन द लीवर, सही है। तो आई थिंक इट्स इनफ टिल नाउ। ओके, क्लास हैज़ बीन डिसमिस्ड।